Hello everyone, this is Shivraj Guruchar and today we'll start motion in a plane. This is also mentioned in syllabus. Okay, so basically this is kinematics in two dimension. Very basic concept. This will be useful in central orbit. Okay, so this is in fact prerequisite for the chapter central orbit. क्योंकि without studying this we won't be comfortable in that topic. Okay, so first let us cover this part. अच्छा इसमें will be using Peddle equation as well. Pedal form जैसे like polar form there is a pedal form. In fact इसका कुछ part तो we have discussed like in fluid I think in fluid or in fact even in statics. ये जो equation use की थी हमने L by R equals to 1 minus E cos theta. This is in fact pedal form of ellipse. ठीक है, where E is eccentricity, L is basically this is semi lattice rectum of ellipse, right? This was basically B square by A. और इसको ए वन माइनस ई स्क्वायर ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही विल सी दैट पीडल इक्वेशन ऑफ जैसे पैराबोला होता है उसका पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर हो जाता है दी स्टफ्स, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मोशन इन अ प्लेन। ओके सो अच्छा ये दैट दिस पार्ट आई हैव डिस्कस इन रेक्टिलिनियर मोशन दैट की वेलोसिटी, मान लो दिस इज सम फिक्स्ड पॉइंट, लेट अस कॉल दिस ओ, and this is a curve which is being traced by a particle with velocity, let us say some velocity. If we take any point P on this curve, let us join this P with the point O. If this is theta and this length is r, and in polar form we can say that P has coordinate r comma theta, ठीक है। then अगर in vector form भी जो OP vector होगा that is nothing but r vector if this is taken as 0 0, ठीक है। so जो velocity of course is a vector quantity, it is given by dr vector or dt, ठीक है। in rectilinear motion this was only in the direction of one direction. If we take the direction as x then this was dx over dt I kept, okay, and there I explained that how to take sign of v, okay। जैसे particle move कर रहा है, if it is moving in the direction of x increasing then we take positive sign. For acceleration it is not the direction of motion but the direction of acceleration, like if particle is moving in this way but acceleration is in the x decreasing then we take d square x dt square with minus sign, ठीक है। so this I have explained in rectilinear starting chapter, so there if you have problem you can refer to that, very important in fact, very basic but still very important because अगर ये sign convention you are not following correct way then of course the answer won't be correct, right? So okay, so this part I have discussed. Similarly, we know that acceleration, if we denote this a vector, sometimes we denote this by small f vector. This is nothing but d square r dt square, or we can say dv vector over dt. ऐसा बोल सकते हैं. Okay, so these are the equation of velocity and acceleration. Now we'll see what is angular velocity and angular acceleration. You must be aware about these concepts. We will discuss them. ठीक है. देखो, like in this figure only. Let us say that at time t, let us say this is the configuration at t equals to t, and delta t times this particle moves to this point q, so this will be del theta. तो अगर यहाँ q के coordinate की बात करें then this will be r plus del r and theta will be theta plus del theta, right? So this del theta angle is in fact covered in del t times, so this change in theta in the unit time is known as angular velocity. So this is angular velocity, okay, angular velocity, very simple, or इसको we can write d theta over dt, okay। So angular velocity is nothing but change in the angle, ठीक है। जो ये angle change हो रहा है इसका with respect to time, that is angular velocity. This is in fact vector quantity. Basically it has a direction. इसकी direction क्या होगी, इसकी direction will be perpendicular to this plane, direction perpendicular to plane OPQ, ठीक है, like right thumb rule से we can say that, right? So ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन this we denote by alpha. This is basically d omega over dt, change in angular velocity with respect to time, और इसको we can say this omega is d theta over dt, so d over dt and d theta over dt, so this is nothing but d square theta over dt square,
आई समझ आता है, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर इसकी यूनिट की बात करें दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, और दिस विल बी बेसिकली रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। अब देखो हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो क्या है। ओके, बिफोर डिस्कसिंग दैट वी नीड टू सी change of unit vector with respect to time, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट बहुत लोग, जो हमने आयलर इक्वेशन डिस्कस की थी, इंक्लूड आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें जो इसके स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखे थे उसमें वी आर वी थीटा बाई आर कोड थीटा ये सब टर्म आ रहे थे। तो इन कमेंट सेक्शन मैनी पीपल आस्क्ड दैट कि ये कैसे आया, ठीक है। तो बेसिकली उसका रीजन ये है जो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो यूनिट वेक्टर है दैट आल्सो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो ड्यू टू दैट चेंज दीज टर्म्स वर रिफ्लेक्टेड इन दैट इक्वेशन, ठीक है, जो मेटेरियल डेरिवेटिव होता था, ठीक है। तो इसका यूज अभी बेसिकली सेंट्रल ऑर्बिट और जो भी हम टू डिमेंशन में मोशन पढ़ेंगे उसमें भी है, ठीक है। सो देखो मान लो ये हमारे पास दिस इज ओरिजिन, ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट ये आर है, इन पोलर फॉर्म ले लेते हैं, दिस इज थीटा, ठीक है। ये डायरेक्शन है, इसको भी व्हाट वी डिनोट बाय दिस इज आर केप, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी थीटा इंक्रीजिंग दैट लेट अस डिनोट बाय थीटा केप, ठीक है। सो बेसिकली आर केप एंड थीटा केप क्या है, आर केप यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ आर इंक्रीजिंग, एंड थीटा केप क्या है, यूनिट वेक्टर in direction of theta increasing. Of course they both are perpendicular to each other. Basically this is perpendicular to line OP and this is along line OP, ठीक है, this is along line OP। ओके, आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं। ओके, अब देखो अगर यहाँ पे कोई एक यूनिट वेक्टर ले लिया जाए, ये जो आर कैप है इसको क्या कर सकते हैं, ये थीटा है, आर कैप है, मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे आर कैप है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट को वे क्या क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ आर कैप, ये जो लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो जाएगी, ठीक है। लेट अस फॉर टाइम बीइंग टेक दिस एज आर कैप ओनली, ठीक है। तो ये लेंथ 1 हो गई, तो ये क्या हो गया, ये जो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ये तो cos थीटा हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो पी है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, cos थीटा कोमा साइन थीटा, ठीक है। सो आर कैप कैन बी रिटन एज cos थीटा प्लस आयोटा। Okay, let us take in two dimension. So this is cos theta I cap plus sin theta j cap, ऐसा लिख सकते हैं। This is direction of I cap and this is j cap because this is x axis and this is y axis। आई होप समझ में आता है। So this is r cap। अब देखो अगर इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया जाए देन cos थीटा इज माइनस sin थीटा d थीटा और dt बिकॉज थीटा इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। आई केप प्लस आई केप तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का हो गया cos थीटा एंड थीटा का डी थीटा और डी टी जे केप, ठीक है। और इसको भी कैन से, इसको देखो कैसे लिखा जा सकता है, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा ऐसा लिख सकते हैं, आई केप प्लस इसको भी कैन लाइक राइट साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा जे केप, ठीक है। और डी थीटा और डी टी को भी कैन टेक आउट बिकॉज ये तो दोनों में कॉमन, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में समझें तो कोई भी अगर वेक्टर होता है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर होता है, अगर उसको इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थीटा से रोटेट करते हैं तो उसमें ई आयोटा थीटा टर्म ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है इनफैक्ट जो भी कॉम्प्लेक्स होगा उससे, तो आर्गुमेंट में प्लस थीटा हो जाता है। तो देखो यहाँ थीटा है तो थीटा की जगह क्या हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसका मतलब जो ये थीटा है यहाँ ये जो है पाई बाई 2 से रोटेट हो गया, तो ये जो है इनफैक्ट इसका भी मॉडुलस 1 ही है। सो दिस इज आल्सो यूनिट वेक्टर बट दिस इज द थीटा, दिस इज इनफैक्ट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, सो इसको वी कैन राइट थीटा केप, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज थीटा केप एंड डी थीटा और डी टी, ये तो पहले से ही है। इसका मतलब अगर यूनिट वेक्टर आर केप का चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम लिया जाए देन दिस विल बी डी थीटा और डी टी,
एंड थीटा कैप। आई होप ये समझ में आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट यूनिट वेक्टर भी टाइम के साथ चेंज होते हैं एट द रेट ऑफ चेंज इज दिस। ठीक है। तो देखो इसमें अगर कुछ स्पेशल केस लिया जाए, इसके देखो कुछ स्पेशल केस लिया जाए, जैसे मान लो ये कर्व है, दिस इज सम पॉइंट पी, इस पे मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ की हमने, ये इसका रेडियस वेक्टर आर है, लेट अस से दिस इज थीटा। तो ये टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, और ये टेंजेंट है तो इसके नॉर्मल कुछ ऐसा हो सकता है, इस टाइप से कुछ नॉर्मल हो सकता है, लेट अस से दिस इज एन कैप एंड ये डायरेक्शन है मान लो टेंजेंट की, लेट अस डिनोट बाय टी वेक्टर या टी कैप बोल सकते हैं। ठीक है। सो देखो इसका मतलब दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, बेसिकली दिस टी कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट और इन द डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग, जो आर्क लेंथ होती है। By the in fact vector analysis, Serret-Fernand formulas will read there that जो टेंजेंट की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है दैट इज नथिंग बट डी आर ओवर टी एस, राइट, ऐसा बोल सकते हैं। और इसको इनफैक्ट और इसकी डायरेक्शन की बात की जाए, जो डी आर ओवर डी एस होगा, डी आर वेक्टर और डी एस, डी आर वेक्टर और डी एस, इसको वी कैन राइट डी आर ओवर डी टी डिवाइड बाई डी एस ओवर डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम ही है। ठीक है। और अच्छा ये जो v वेक्टर था वो क्या आ रहा था, डी आर ओवर डी टी। तो डी आर ओवर डी टी क्या होता है, हाँ दिस वाज इंपॉर्टेंट इनफैक्ट। ठीक है। सो कोई भी कर्व है जैसे ये है, इसमें ये आर वेक्टर है, तो डी आर ओवर डी टी इज वेलोसिटी वेक्टर देयर, बट डी आर ओवर डी टी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या है, टेंजेंट टी के इन द डायरेक्शन ऑफ टी वेक्टर होती है। सो इसका मतलब ये हो गया कि टू डिमेंशन में वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इज सेम एज द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी कर्व पे, दैट विल टेल द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर दैट पॉइंट। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक। तो बस यही है। अगर जैसे इसमें मान लो टी डिफरेंशिएशन ऑफ टी के विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाए तो ये क्या होगा, डी थीटा और डी टी तो है ही, ठीक है, बट थीटा के मीन्स इसके टी के परपेंडिकुलर जो है वो एन कैप होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एन कैप है। ठीक है। दिस एन कैप इज इनवर्ड नॉर्मल भी बोल सकते हैं इसको। तो ये केस हो गया। अगर मान लो ऑपोजिट पूछा जाए, डी एन कैप ओवर डी टी किया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस डी थीटा ओवर डी टी, टी कैप हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक। ओके। सो दैट्स इट। अब देखो इस ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज होगा, ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन angular velocity and linear velocity। ओके। देखो इसमें क्या किया जा सकता है, मान लो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, लेट अस टेक दिस एज ओरिजिन, दिस इज सम कर्व, इस पे कोई पॉइंट पी ले लिया, इसका जो एक कोऑर्डिनेट आर वेक्टर है, लेट अस से दिस इज थीटा। सो दिस इज बेसिकली पी कैन बी रिटन एज आर कोमा थीटा इन पोलर फॉर्म, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है। तो इसमें देखो अगर वेलोसिटी की बात की जाए, v वेक्टर क्या होगा, दैट वी नो दिस इज नथिंग बट डी आर वेक्टर और डी टी, और आर वेक्टर कैन बी रिटन एज बेसिकली आर वेक्टर को इसके मॉडुलस से डिवाइड करेंगे देन विल गेट आर कैप। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आर वेक्टर को वी कैन राइट आर कैप आर। ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए तो वी वेक्टर विल बी डी ओवर डी टी, बेसिकली दिस इज आर टाइम्स आर के, बाई पार्ट लगा तो इसमें डी आर ओवर डी टी, आर कैप ऐसे ही रहेगा, प्लस आर कैप को छोड़ा जाए, इसको आर को छोड़ा जाए, डी आर कैप ओवर डी टी, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है। और वी कैन से दैट डी आर ओवर डी टी इज इक्वल मल्टीप्लाई बाई आर के प्लस आर डी आर के ओवर डी टी, ये तो हमने डिस्कस किया अभी, दिस इज नथिंग बट डी थीटा और डी टी एंड थीटा कैप। ठीक है। अब देखो इसका मतलब आर कैप की डायरेक्शन ये है और थीटा कैप की डायरेक्शन क्या होती है, बेसिकली
थीटा कैप की डायरेक्शन क्या होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू आर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये वी वेक्टर हो गया। अब देखो इसका मतलब अगर वी वेक्टर का रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट, वी वेक्टर तो क्या होगा यहाँ टेंजेंट में होगा, ये वी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अगर मान लो रेडियल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट वी आर है और थीटा की डायरेक्शन में वी थीटा है, तो ऑफ कोर्स वी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी थीटा, थीटा के प्लस वी आर, आर के ऐसा तो लिख सकते हैं बिकॉज थीटा के में आर के बार परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ईच अदर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट वी थीटा इज नथिंग बट आर डी थीटा ओवर डी टी एंड वी आर इज नथिंग बट डी आर ओवर डी टी। आई होप ये समझ में आता है, ठीक है। बस ये यूजफुल है। डी थीटा और डी टी तो क्या था, ये तो एंगुलर वेलोसिटी थी, सो दिस कैन बी रिटन एज आर ओमेगा, सो दिस इज वी थीटा एंड रेडियल जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी डी आर ओवर डी टी, ठीक है। या दिस पार्ट इनफैक्ट ये जो थीटा है ये दिस इज नॉट थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो थीटा होता है वो इस यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर जो बेसिकली इस आर कैप जो है, देखो यहाँ पे क्या है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है मान लो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, अगर इसको साई बोल दें, ठीक है, देन ये दिस विल बी दी साई, या इसको थीटा बोल दो तो डी थीटा होगा। तो अगर इसको साई बोल दिया तो दिस विल बी डी साई ओवर डी टी, क्योंकि देखो इस केस में भी जो एक्स एक्सिस से एंगल था वो थीटा था, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर में जा रहा था। इस केस में क्या है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस से एंगल साई बना रही है, तो दिस विल बी डी साई ओवर डी टी, ठीक है। आई होप ये समझ में आता है, ओके, ठीक है। कोई भी मतलब जिस भी यूनिट वेक्टर के बारे में वी आर बेसिकली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका एक्स एक्सिस से जो एंगल होगा दैट विल बी दिस एंगल, ठीक, ओके। बिकॉज यहाँ पे थीटा ये है, बट अभी क्या है हम टी टी वेक्टर को कर रहे हैं डिफरेंशिएट, दिस थीटा वोंट बी है, दिस विल बी साई, ओके। आई होप ये समझ में आता है। यहाँ पे थीटा होगा बिकॉज आर कैप है, उसका एंगल जो इनिशियल लाइन है उससे थीटा ही है, ठीक। सो ओके, अब देखो जैसे मान लो ये पोल है, दिस इज इनिशियल लाइन, दिस इज एंगल थीटा और ये पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये वी थीटा इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका जो ओमेगा होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा इंक्रीजिंग डिवाइड बाय अगर ये ओ है ओपी, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज रिलेटिव टू ओ, ठीक है। और रेस्ट पे इसलिए यहाँ पे वी थीटा सिंपली हो गया, अगर ये इसकी कुछ वेलोसिटी होगी तो यहाँ जो वी थीटा लिया जाएगा दैट विल बी रिलेटिव टू दिस ओ, ठीक। आई होप ये समझ में आता है, ओके।